The next chapter in our business studies is directing, the second last function of management after staffing, after organizing, planning, organizing, and then staffing, after doing all sort of arrangements, after organizing all things, all type of resources, and after staffing means putting right people at right places and making them understand what to do. The next process is to direct them, to instruct them, to guide them, to motivate them, to supervise. For this, we need supervisors, we need leaders, we need managers, those who can get the work done. इसलिए डायरेक्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रॉपर डायरेक्शन, कहता ना पिक्चर बिल्कुल बेकार. क्यों बेकार? बोले डायरेक्शन ही नहीं है उसमें. डायरेक्शन का मतलब द डायरेक्टर हैज नॉट डन हिज जॉब प्रॉपरली. बोले एक्टर भी इतने अच्छे थे, इतना पैसा भी खर्च किया, कहानी में भी दम नहीं था बोले, एंड डायरेक्शन तो इतना प्रॉपर इम्प्रॉपर था, या इतना जो है गिरा हुआ स्टैंडर्ड का, इट कुड नॉट मेक. पता चल जाता ना. स्कूल में बोले मैनेजमेंट ही बेकार है वहां, because they are not able to handle situations, they are not able to handle teachers, not able to handle the students. Management, director, direction is such an important function of management that if direction is not proper, planning, organizing and staffing will definitely fail. कितना भी अच्छा आपने कर रखा है, लेकिन उसको अगर सही तरीके से आप काम में नहीं ले पा रहे, if you are not able to work out things on the ground, you are not able to motivate your employees to do work because they are highly qualified, competent, everything, but the atmosphere is not such of the organization. Plus nobody is there to instruct, to guide, to monitor, to supervise, to lead. Everything is going waste. Directing a managerial function refers to the process of instructing, guiding, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग. देखो कितने सारे इसमें मैनेजरियल फंक्शंस की बात हो रही है. इट इज नॉट अबाउट ओनली इंस्ट्रक्टिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट गाइडिंग पीपल, इट इज ऑल्सो अबाउट टेलिंग देम व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इट इज ऑल्सो टेलिंग देम व्हाट इज टू बी डन बाय काउंसलिंग देम, बाय मोटिवेटिंग देम, बाय लीडिंग देम फ्रॉम द फ्रंट. कई बार करके भी दिखाना पड़ता है उन्हें. दिस वर्क हैज टू बी डन इन सच एंड सच वे, राइट. डिफरेंट केस स्टडीज एज इन द प्रीवियस चैप्टर आल्सो वी read, through different case studies, through different lectures, seminars, motivate करना उन्हें. And we will study what are the different methods of motivating, right? By financial incentives, non-financial incentives, monetary benefits, non-monetary benefits, they are called, right? And anyhow making people to do the work as planned and as डायरेक्टेड. ये है आपका डायरेक्टिंग में. तो इसमें जो वो है क्या कहते हैं आपका एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, एंड दे आर सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन. एंड ऑल द फोर एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, in which motivation is the most important one, and in communication also formal and informal communication is very important for the organization, because they both complement each other and they both are the pillars, they both are the bones of the backbones of the organization. Because proper communication on all the levels from top to bottom should be proper. हर चीज जो है समझ में आनी चाहिए. It should be on time. It should be, the communication should be fruitful, right? It should not be confusing. It should not be that which creates chaos in the organization. So ये भी बहुत important है. दोनों पढ़ेंगे हम. Formal and informal communication. Barriers of communication are not there now. They are reduced this year. Though we will start
with supervision. What is supervision? Supervision is an art of seeing. Supervision कहते हैं ना, supervisor. Who is he? He is supervisor. What is the work of supervisor? To supervise. Now what to supervise? The work. To supervise means to see what subordinates are doing. Supervisor will always monitor. Supervisor will always keep an eye on the subordinates, what they are doing, whether they are on work or not, whether they are doing the things on the ground or not, whether they are executing the orders or not, right? Super plus vision. Supervision means super plus vision, and super plus vision means he is there who is over and above. Super means above. He is Superman who is above all the subordinates, all the workers under him. He is above them. His post is above them, right? He has authority over them. He can give command, he can instruct. And vision, you know, vision means to see whether everything is going on correctly or not. He is a camera, right? He is like a camera 24/7. He should be always on, he should always be there. नहीं तो कहते ना काम तो हो जाता, ये सुपरवाइजर ने ध्यान ही नहीं दिया, उसने काम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मतलब he did not see whether the work was going on perfectly well or not. He did not come to the site, he did not come to the production area जहां पर काम हो रहा था. He is not there at all. He does not bother whether things are going on, people are coming or not, they are doing work or not. वो अपना काम क्योंकि ढंग से नहीं कर रहा है, द सबऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो गए, लेजी, बिल्कुल केयरलेस, इनसिंसियर, और वो काम नहीं कर रहे. सो प्रॉपर सुपरवाइजर शुड बी देयर. Supervision can be explained in two ways. Number one, supervision as an element of directing, because supervision means giving directions. Supervision means directing people, instructing people to do work in the most efficient way. Also, supervision as a managerial function, because supervision is a function performed by managers at the operating level of management. The managers are the floor manager who have direct relationship with the workers, and they are responsible for the performance of the worker. Supervisor अगर proper हो, supervisor अगर strict हो, hard working हो, disciplined हो, तो performance of the employees always grows, अच्छी होती है. Performance is always in a going upward always, कभी भी down नहीं आएगी. किसकी performance? Workers की. Because supervisor will always, supervisor acts as a manager. Supervisor acts as a person who not only gives them order but guides them also. Order भी दे दिया पहले, उसके बाद गाइड भी करता है कैसे होना चाहिए काम. अगर कोई डिमोटिवेटेड टाइप का लग रहा है, उसे लेथार्जिक टाइप का लग रहा है, then it is also his duty and his responsibility that he should motivate him. He should fill in him an urge to do work, right? He should be very enthusiastic, he should be very energetic, he should be always on his toes, he should be always willing to help his workers. That is called proper supervisor. And these all में क्या हो रहा है, सुपरवाइजर का मेन काम क्या, मैनेजर को क्यों कहते हैं मैनेजर? मैनेज. He has to manage. He cannot say, manager cannot say anytime, I think this cannot be done, I think this is not possible, I think this is very difficult. Manager will always say, I will manage, because his work is to manage. Managerial function, that is why it is, supervision is also a managerial function, because it needs management, it needs things to be managed, it needs people to manage each and every situation, manage or handle, we can say, each and every situation. That is why supervision is a very, very important function. What are the functions performed by a supervisor? Supervisor करता क्या है, और डिटेल में अगर हम जाए, नंबर वन, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद वर्कफोर्स एंड ऑल्सो
he is a link between the top management and the workers. Whatever top management decides, whatever the authorities tell him, he passes that to the workers at the operating level. He is in direct relation or direct contact with them. He interacts with them. He communicates with them. He makes harmonious relation with them so that the work can be done, easily. Work can be done without any chaos, without any confusion, without any hassle, and everything is such that the organization can always prosper, always move higher, नीचे की तरफ नहीं. It helps to maintain unity among workers. सुपरवाइजर का एक ये भी काम होता है कि दैट वो देखे कि सबके बीच में हार्मोनियस रिलेशंस रहे, एंड देयर इज नो टेंशन अमंग द वर्कर, देयर इज नो एगिटेशन, कोई विरोध नहीं होना चाहिए वहां पर. अगर किसी तरह की कोई परेशानी है वर्कर्स को, तो देयर शुड बी सम वेज और मेथड्स कि वो उनसे बात करें एंड आस्क देम अबाउट देयर ग्रीवियंसेस, राइट, अबाउट देयर कंप्लेंट्स, और उनको इकट्ठा करके रखे, यूनाइटेड करके रखे, सो दैट they all work with full enthusiasm and zeal and full dedication for the organization. He ensures achievement of target, क्योंकि उसका मेन काम है. उसको बताया गया that this is your target, this is this month's target, कि हमें इतनी सेल करनी है. कैसे, ये तुम्हारा काम है. You supervise people, आपने देखना है कि कैसे इसको जो है अचीव करना है. Number next is he improves employees performance and morale, also enhances work with skills among employees. It helps to build efficient team of workers. सबका मतलब क्या है? प्रथम जो भी है सुपरवाइजर क्या करेगा, मतलब इतने सारे पॉइंट्स हैं, पर सारे पॉइंट्स में आप देख रहे हैं क्या, it is talking about making employees efficient, talking about making employees morale high, talking about keeping them united, talking about making good relationship, talking about completing the target or work time, giving them direction, giving them proper direction, giving them proper instruction, guiding them, motivating them, means to say anyhow getting the work done. Management is what? Management is getting work done by others. Management is the art of getting things done by others. If you can do it, your management is good. You are a good manager because you can do things by having good relation with the workers, motivating them, guiding them properly. Sometimes we have good workforce, but there is no proper गाइडेंस टू देम. तो वो कहते हैं ना, अगर इनकी प्रॉपर गाइडेंस होती, टीम तो अच्छी थी बोले, बट अगर जो है सही से कोच मिला होता है इन्हें, तो दे वुड हैव वन द मैच. देयर वाज नो प्रॉपर कोचिंग. तो ये कोच है, ही इज अ टाइप ऑफ कोच, ही इज अ टाइप ऑफ गाइड, ही इज अ टाइप ऑफ मेंटर, ही इज अ टाइप ऑफ मैनेजर. सुपरवाइजर इज वन जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, because even after having all the resources with you and a proper planning backing you, everything may go flat if there is no proper guidance, there is no proper supervisor. So you can see that it is very, very important that the supervisor does his job properly, and also the workers are helping them or cooperating with him. This is supervision. The next topic is very, very important, motivation. Motivation ऐसा होता क्या? नहीं, मोटिवेशन को आप एक वर्ड में या एक सेंटेंस में अगर डिफाइन करें, क्या है मोटिवेशन? लालच? नो 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 नो, नो लालच है. बढ़ावा देना, बढ़ावा इन द सेंस, कहते हैं अगर हम मान लो हम क्या करेंगे, मोटिवेशन की कमी है इसमें, क्या मतलब हुआ?
उसमें किसी भी काम को करने की या किसी भी मतलब डांस है मान, तो हम कह रहे हैं इसमें डांस को करने के लिए ना मोटिवेशन, अगर इसको कोई मोटिवेट कर दे तो ये बहुत अच्छा डांसर या डांसर बन सकती है। पढ़ने में भी मोटिवेशन की जरूरत है, ये पढ़ सकता है बट नहीं पढ़ता है बिकॉज देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज एन इनर अर्ज, मोटिवेशन इज एन इनर अर्ज टू डू थिंग्स voluntarily. If you are highly motivated, तो मोटिवेटेड आदमी कई तरीके से होता है, वो उसके फैक्टर्स हो गए किस तरीके से वो मोटिवेट हो सकता है, या डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन जब आदमी मोटिवेटेड होता है तो मींस ही इज रेडी और विलिंगली, रेडिली और विलिंगली एक्सेप्टिंग टू डू समथिंग वॉलंटरीली। इट शुड, कहता ना, इट शुड कम फ्रॉम विद इन। कोई काम करने की, झूठ जो बोल रहा है आदमी, क्यों बोल रहा है? बिकॉज उसको सच बोलने की इतनी वो है ही नहीं, अर्ज, राइट। कोई बहुत मेहनत करता है, कोई बिल्कुल नहीं करता है। कोई जो है आप देखते हैं खेल में जो है कितना वो लगाता है, बिकॉज ही इज हाईली मोटिवेटेड टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम विद इन। मोटिवेशन इज एन अर्ज और मोटिवेशन इज ए स्टिमुलस, एक ऐसे अंदर आपके करंट है विच मेक्स यू डू थिंग्स वॉलंटरीली। तो आप समझिए मोटिवेशन की कितनी जरूरत है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इफ योर एम्प्लॉइज आर नॉट मोटिवेटेड हाईली टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, तो आप तो उनको कहते रह जाएंगे और वो जो है बिल्कुल भी काम में क्या करेंगे, लापरवाही करेंगे। दे विल बी लेथार्जिक, राइट, ध्यान से सुनेंगे नहीं आपकी बात। मे बी योर टारगेट्स विल नॉट बी अचीव्ड प्रॉपरली, रेगुलरली, because your employees do not want to do work on their own. आप देख रहे हैं सामने है तो काम कर रहे हैं, नहीं है तो नहीं कर रहे। So that means to say motivation is very very important factor for an organization to prosper or to grow. Motivation is an incitement or inducement to act, to do something. In a business organization, motivation is a process where managers use techniques or methods to motivate an employee. Different methods or different techniques use करते हैं। Motivation cannot be forced. Motivation cannot be forced on employees. किसी पे भी आप motivation जो force नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो वो है शर्त है वो क्या है, फ्रॉम विद इन। वॉलंटरीली अगर कोई काम करने को तैयार है, वॉलंटरीली अगर जो है कोई रेडी होता है, तब तो हम कहेंगे कि यस ये मोटिवेटेड हो गया है, मोटिवेशन इसमें आ गया भाई। अब जो है ये काम करेगा अपने आप, कोई देखे चाहे कोई ना देखे, कोई इससे कहे या कोई ना कहे। लेकिन बंदूक की नोक पे आप काम कराए, मोटिवेटेड बोल, मोटिवेटेड हो गया, यस सर हो गया। बंदूक की नोक पे अगर वो कह रहा है हाँ, तो बंदूक हटाते ही वो कहेगा ना, अपने आप उसके मुंह से निकलेगा नहीं करूंगा मैं, फिर बंदूक तान दी करूंगा। होता नहीं, बच्चे छोटे मोटे रो रहे होते हैं, उनको कहते हैं खाना खा लो, खाना खा लो, ये फिनिश करो, नहीं फिनिश करते हैं, तो आप उन्हें मोटिवेट करने के लिए थप्पड़ दिखाइए, तो मोटिवेट नहीं हो रहा है, विलिंगली ही इज नॉट डूइंग। थप्पड़ ऐसे करेंगे तो मुंह खोल ले, खा लिया, थप्पड़ नीचे करा, that is not motivation, that is done, that is by force you are trying to get things done. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी फोर्स से काम नहीं कराया जा सकता, या कहीं भी जबरदस्ती किसी को पढ़ाया भी नहीं जा सकता। वो सुनता रहेगा वजह से या बैठा रहेगा, his mind will not be there, he will be present only physically, not mentally. So to motivate means to get ready a person for doing a work, getting ready a person for doing a work voluntarily. बस सबसे बड़ी शर्त इसकी यही है। और इसके लिए कई बार वैसे नहीं मानता है आदमी, समटाइम्स वी हैव टू यूज डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक्स। तो हम उसको क्या कहते हैं, पैसे का लालच देते हैं, प्रमोशन का लालच देते हैं,
ट्रांसफर का लालच देते हैं। ऐसे भी नहीं मानता तो फिर उसे डराते हैं कि आपका जो डिवोर्सन हो जाएगा, आपको जो है फाइन लग जाएगा। जो जगह जगह फाइन लगे होते हैं, जुर्माना जिसको कहते हैं आप, पेनल्टी जिसे कहते हैं, वाई, उसके डर से भी तो आदमी काम करता नहीं करता। बट बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा क्या, सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा कि उसको इतना लालच देते जा रहे हैं, इतना लालच, फिर वो लालच भी काम कर रहा है, वैसे काम ही नहीं कर रहा। होता ना, सिखाने के लिए कई बार घर में आपने अपने देखा होगा, पेट्स होते हैं, सिखाने के लिए कोई चीज उनको मान जाए बात हमारी, तो हम उन्हें लालच देते हैं किसी चीज का, कि बिस्कुट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। फिर एक टाइम आता है कि वो बिस्कुट के बगैर काम ही नहीं कर रहा, कुछ मतलब सुन ही नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ पॉजिटिव्स एंड नॉन पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं कहेंगे, सम अदर मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग अ पर्सन, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। 3 चीजें होती है इसमें। एक मोटिव, मोटिवेशन में क्या क्या चीजें होती है। नंबर 1 मोटिव, देयर शुड बी अ मोटिव, ऑब्जेक्ट, एम। इसके लिए किसी को आप क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं काम के लिए, कोई आपके पास सामने लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 2 इज मोटिवेशन, जो बता दिया आपको क्या होती है। नंबर 3 इज मोटिवेटर्स, मोटिवेटर्स मींस डिफरेंट, हाँ, दे आर द टेक्निक्स। मोटिवेटर का मतलब वो नहीं जो मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटर्स मींस डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स, राइट, टूल्स, टूल्स टू मोटिवेट। कौन कौन से ऐसे तरीके, औजार हैं, हाँ औजार मतलब नॉट दिस, गन नहीं चाहिए वहां पर, या डंडा लेके जो है मोटिवेट कर रहे हैं, वो टूल नहीं है, राइट। दे कैन बी समटाइम्स यूज्ड, राइट, बट दे विल नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें जो है सेल्फ विलिंगनेस जो है वो नहीं आई। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, most importantly it is an internal feeling, it should come from within, it should not be imposed, it should not be forced. Motivation produces goal directed behavior, जो मोटिवेशन, जो मोटिवेटेड हो जाता है वो अपने आप ही ऐसा बिहेवियर करता है, ऐसे वर्क करता है जो उसके गोल की तरफ होते हैं। उसके सारे एक्शंस, उसके सारे जो वो है एक्टिविटीज, वो ऑटोमेटिकली कैसे हो जाती है, टुवर्ड्स द गोल। वो फिर ऐसे कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, which will not give him, you know, which will not bring him close to the goal, organizational goal and his own. मोटिवेशन क्या है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों मोटिवेशन जो है काम करते हैं, पॉजिटिव भी करता है तो समटाइम्स नेगेटिव भी करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन ही जो है वो जरूरी है, कई बार जो है सुधारने के लिए, कई बार जो है नेगेटिव मोटिवेशन सही लाइन पे लाने के लिए नेगेटिव वाला भी जरूरी होता है। घर से निकाल दूं तुझे बता रहा हूँ, ये भी मोटिवेशन है। अच्छा, फिर 2-4 दिन बच्चा सही रहेगा। अब बार बार इसी को यूज करते रहेंगे और बार बार जो निकालेंगे नहीं तो कहेंगे तो खाली है, देन ही विल नॉट लिसन। तो समटाइम्स इस तरीके से बच्चे को डराते हैं, इस तरीके से जो है वर्कर्स को भी जो है डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू मोटिवेट एनीबडी, और खास करके व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, उसका बिहेवियर ह्यूमन बीइंग्स का जो है आप देख रहे हैं कैसा होता है, इट इज डायनेमिक, इट इज टोटली डिफरेंट। सेम पर्सन एक जगह एक चीज से गुस्सा हो जाता है, दूसरी जगह उसी चीज से गुस्सा नहीं होता। सेम पर्सन जो है सेम चीज देख के कभी खुश होता है, कभी उदास हो जाता है, कभी देख रहा है उसको बारिश बड़ी अच्छी लगती है, कभी उसको बारिश अच्छी नहीं लगती है, राइट। सेम चीज है, घंटी बजती है सुबह आपको बड़ी गंदी लगती है, वही घंटी शाम को बजती है बड़ी अच्छी लगती है, घर जाने की घंटी है ये तो। डोरबेल अगर आपका दोस्त बजा रहा बाहर से, यू आर वेरी हैप्पी, है, कोई मांगने वाला आ गया, कोई हो गया तो यू विल, फिर ऋषभ घंटी बजा दे, प्रथम जो है गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन जो है इनके डैश डैश फ्रेंड आ जाए, ही विल बी हैप्पी, मोर हैप्पी, ही कैन फील बाय हिमसेल्फ, कोई जो भी आ जाए अच्छे लोग जिनको ये अच्छा मानते हैं। एंड दैट इज व्हाई टू मोटिवेट समबडी, मोटिवेट, मनसा किस चीज से मोटिवेट होती है, इज एंटायरली डिफरेंट। ये किस चीज से मोटिवेट होती है, शीतल, इज एंटायरली डिफरेंट, राइट, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट
characteristic features. They have different likes, dislikes. So it is called a very complex process. Okay, that is all for today. Tomorrow we will continue further. Thank you.